Hello students, in past video we were discussed the three illustration of our NCERT textbook, okay, three or I think four, okay, 2 to 4. Now in this video we are again continue with the one illustrative example and then we are proceed to the some exercise problem. Okay, so here we are divided our video in the two part A and part B. So in part A we are only discussing the illustration 5, okay, and in part B we are discussing the exercise examples. Okay, so let me start this question. So what is the question? A charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread. Okay, यानी कि यहाँ पे आपको एक स्फीयर दिया गया है, वो क्या है, ऑलरेडी चार्ज्ड है और एज पर द फिगर यू आर सी दैट इट इज अ positively charged sphere and it is hanged by the what nylon thread. Now another charged metallic sphere named B is held by an insulating handle is brought closer to the A such that the distance between the center is 10 cm. It means that the second sphere, which is again also positive charge, and it will be catched by the one pin, otherwise ચીપિયો કહીએ આપણે અંદર, અને એ પોતે કેવો છે, ઇન્સ્યુલેટિંગ હેન્ડલ છે. સો ધેટ્સ વાય ઇટ્સ ચાર્જીસ ડઝ નોટ ટ્રાન્સફર ટુ ધ હેન્ડલ ટુ આર બોડી. Okay, and keep this closer and closer to in a such a way the final closest distance between these two is what, 10 cm. Okay, now what is the further question? The resulting repulsion A is noted, barabar, and sphere A and B are touched by the uncharged sphere C and D respectively as shown in the figure. ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उन्होंने कट कर करके लिखा अंदर, तो फर्दर क्वेश्चंस यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया अंदर. चलो मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको समझा, अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करना अंदर. अब क्या बोल रहा है कि जो भी आपका यहाँ पे रिपल्सन लगा है दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट. सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द रिपल्सन फॉर दिस गिवन सिचुएशन. So here the conditions are given, but what is amount of charge on the each sphere, that is does not provided. So here starting is what, first of all we are assuming that let this charge on the sphere A equal to the what, Q1, and the on sphere B will be considered as the what, Q2. Yes or no? Now these two spheres are separated by the distance 10 cm. So by using the Coulomb's law, what is the force between these two one? Okay, so force between this A and B will be given as K, Q1, Q2 and divide by R square. Now R is given but charges are not given, so that's why we are keeping Q and Q2 as it is and just replace R square by the what, 10 cm. But remember that here K is a SI unit. Okay, K का जो यूनिट होगा वो ऐसा यूनिट. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू व्हेनेवर राइट डाउन द values of the other quantity, you must have to converted them into the MKS and then you have to write down. Okay, whether they are required or not. In some example there may be our work will be gone, એટલે કે નીકળી જશે આપણું કામ, but in every case it will be not happen. So for that, for simplicity, we are always trying to convert whatever the value in the only MKS value. Okay, so whenever you are placing the value of, just write down 0.1 meter instead of the 10 centimeter and then after you have to complete the calculation. Okay, clear? Now what they want to tell in the next question, now these two sphere, okay, are come into the contact respectively with the another uncharged sphere C and D. यानी कि A जो है वो C टाइप का, C जैसा जो A स्फीयर है उसके जैसा एक अनदर स्फीयर C है जिसका डायमेंशन बॉडी सब कुछ सेम है, बट C जो है वो अनचार्ज है और ये C को A के कांटेक्ट में लाया जाता है. द सेम थिंग इज डन फॉर द सेकंड स्फीयर दैट इज नेम B. ओके, B के कांटेक्ट में कौन लाया गया है, यहाँ पे D लाया गया है. अभी हमको पता है कि whenever any charged bodies come into the contact with the uncharged body, then what is happen, whatever the charge is there, that is transferred to the another body. Now this transferring is happen up to the what limit, whenever both the body possess the equal amount of charge density, ऐसा बोला था. But here A and C both are the identical sphere. So what you have to assume, whenever the both having the same amount of charge, then here the process will be stopped. ओके, सो जैसे ही आपने कांटेक्ट किया तो एक्चुअल में क्या था, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, इसके पास Q1 था, तो टोटल सिस्टम का चार्ज क्या हुआ पे, Q1 हुआ. पर अब क्या होगा, दोनों का कांटेक्ट है तो जो पहला वाला स्फीयर ए उसमें से कुछ चार्ज कहाँ ट्रांसफर होगा, सी में ट्रांसफर होगा. कहाँ तक होगा, जब तक दोनों में उसका हाफ हाफ नहीं हो जाएगा. तो हमारा टोटल चार्ज Q1 था, उसका हाफ क्या होगा, Q1/2 होगा. यानी कि कांटेक्ट करने के बाद ए स्फीयर पे और बी स्फीयर पे दोनों पे आपका चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी.
सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, वहाँ पे क्या होगी भाई Q/2, Q2/2 होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने उनकी वैल्यू उस तरह से ली अंदर। समझ में आ गया कि ना आ गया अंदर, बराबर। तो दूसरा पार्ट आपका ये कि जब हम कांटेक्ट करते तो क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों जो हमारे इनिशियल स्फीयर थे उसके चार्ज क्या हो जाएंगे भाई, जो भी पहले थे उसके हाफ हो जाएंगे अंदर। समझ में आ रहा है। अब वो बोल रहे हैं कि नाउ वी आर कीपिंग दिस टू स्फीयर अगेन ए एंड बी, यानी कि जो हमारा कांटेक्ट होने के बाद करना क्या है कि वो सी और डी का कांटेक्ट रिमूव करके उनको दूर भेज देना है, बराबर। और अब ये ए और बी को फिर से एक दूसरे के क्लोजर लाना है, जैसे पहले लाया था, पर पहले हम 10 सेंटीमीटर पे लाए थे, अब आपको कितने सेंटीमीटर पे लाना है, 5 सेंटीमीटर पे लाना। तो अब ये दोनों के बीच में फोर्स कितना लगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला F इक्वल टू, यहाँ वहाँ पे वो भी F लिया था, तो यहाँ पे इधर F डैश ले लो, या तो फिर वहाँ पे F1 नाम दे दो, यहाँ पे F2 नाम दे दो, जो भी आपको कन्वीनियंट है वो दे दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगी, K Q1/2 Q2/2, क्यों, क्योंकि उनके चार्ज तो आधे हो गए थे, और डिवाइड बाई क्या होगा भाई 0.05 का स्क्वायर होगा, 5 सेंटीमीटर है, पर हमको तो क्या करना है, मीटर में लिखना है अंदर, तो 0.05 का होगा। अभी सीधी बात है 2 डिनोमीटर में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, यहाँ से निकाल दो तो अंदर, बराबर। अगर आप 0.05 के स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर, तो आपको आंसर्स क्या मिलेगा, 0.01 का स्क्वायर किया, सॉरी भूल हो गई मेरी, 0.1 का आपने स्क्वायर किया था पहले, तो आपको क्या मिला 0.01। उसी तरह 4 इंटू 0.05 का भी स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0.01 ही मिलेगा अंदर, बराबर। अब ध्यान से देखोगे तो पहला वाला जो ऐप था उसके न्यूमरेटर में भी K Q1 Q2 था, दूसरे वाले में भी सेम है, और डिनोमिनेटर भी दोनों का सेम हुआ। तो अगर अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमको क्या पता चल रहा है कि भाई भले दोनों केसेस में चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, डिस्टेंस की वैल्यू भी चार्ज, पर यहाँ पे दोनों कुछ इस तरह से चेंज हो रहा है कि दोनों केस में दोनों के बीच का एक्सर्ट फोर्स का वैल्यू क्या बन रहा है, सेम बन रहा है। समझ में आ रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन का जो F है, सेकंड का F डैश बोलो और फर्स्ट का F बोलो, दोनों आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है अंदर। समझ में आया कि नहीं अंदर, बराबर। तो ये बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन आपको इलस्ट्रेशन में यहाँ पे दिया गया अंदर। ओके, नाउ वी आर इन वीडियो पार्ट बी। ओके, वी आर डिस्कसिंग द एक्सरसाइज एग्जाम्पल। ओके।